Hello and welcome back, everyone. Welcome to the session where we will be studying about the chapter Heredity and Evolution from class 10 CBSE. Okay, and I am Yamis Prabha who will be taking up this session, and I hope you will be at the end of the day having the whole idea about the chapter, at least heredity part. Okay, now coming to the section, first of all, before studying this chapter and before knowing about what is hereditary, it is very important for us to understand what is sexual reproduction. क्योंकि हम पहले sexual reproduction जानते हैं, उसके बाद ही hereditary का process start होता है, right? So I want to ask you people, do you look like your mama and your papa? Yes or no? Yes, right. So you people look alike your mama and papa. Some features are from mother and other features are from father. And why is that so? That is what I want to answer you today and make you clear today. ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है कि हम मम्मी और पापा की तरह दिखते हैं? Because of the process known as hereditary, because we carry the characteristics from our parents. Okay, we carry the characteristics from our parents and then we फॉरवर्ड इट टू द लेटर जनरेशन ऑल्सो. फिर हम वो पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं, हम वो कैरेक्टरिस्टिक्स फिर अपने बच्चों को देते, अपने बच्चों फिर वो कैरेक्टर्स अपने बच्चों को देते, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे क्या हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ हेरिडिटरी मूव ऑन. Okay, so first of all, we have to understand what is sexual reproduction, the mode of reproduction that involve two individual, one male and one female, okay, is known as sexual reproduction. They produce sex cells or gametes which fuse to form a new organism. That means a mother will be giving egg, right, and the father will be contributing sperm, right? And then what happens is they both fuse, right? The sperm will give the genetic material and the genetic material of the egg will fuse, right? Then what happened? The zygote will be formed, right? This is the genetic material of the mother and this is the father, and they both will be fusing, and then zygote will be formed. So this is a cell which will grow into a new individual, that is a child. ठीक है, तो child में क्या होता है, the gene of father भी होंगे, gene of mother भी होंगे. ठीक है, ऐसे ही करके एक organism बनते हैं. This is what happens in sexual reproduction. So moving forward with what happens after sexual reproduction, sexual reproduction lead to the mixing of genetic material, right? Mixing of the genetic material present in male and female gamete. For example, female में एक certain genetic material है, and inside the body of male there is another genetic material coding for the same characteristics, right? So now what happened, the genetic material of the male will be this, right? And now it will be fusing with the genetic material of the female. So the new organism that will be forming will have the characteristics of both male as well female, right? So see, and what is genetic material now? तो मैम आपने तो बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का फ्यूजन होता है, तो हमें जेनेटिक मटेरियल क्या है वही नहीं पता, तो हम कैसे पढ़ेंगे, राइट? सो the DNA is the genetic material. Okay, genetic material is nothing but DNA, and it stands for deoxyribonucleic acid. ठीक है, it is a long thread like strand present inside a nucleus and are known as genetic material. If I make the picture of the cell, inside the cell there is a nucleus, and inside the nucleus there is a thread like material present, and this thread like material is known as DNA. All right, and that DNA from the mother as well as father, okay, will be present in the sex cell which will fuse and they will form a new organism. तो मुझे आप बोलोगे, यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा, मैम अगर मदर के पास 100 जेनेटिक मटेरियल है, फादर के पास भी 100 जेनेटिक मटेरियल है, तो दोनों का फ्यूजन होगा, तो फादर का 100
प्लस मदर का 100, मतलब हमारे पास 200 जेनेटिक मटेरियल होते हैं, आप ऐसा बोलोगे मुझे, राइट? तो मैं बोलूंगी नहीं बच्चों, क्या होता है कि मदर अपने 100 में से बस 50 कंट्रीब्यूट करेगी, फादर भी अपने 100 में से बस 50 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 50 प्लस 50 होगा 100, ठीक है? क्योंकि क्या होगा कि मम्मी के पास 100 है, फादर के पास 100 है, और आपके पास 200 हुए, मतलब आप तो अलग लेवल के प्राणी हो गए, इस धरती के रहेंगे ही नहीं आप, ठीक है? क्रोमोसोम ही हमें अपना स्ट्रक्चर देता है, आंख, नाक, मुंह, सारे चीज ये जीन ही या डीएनए ही कोड करते हैं, ठीक है? इसीलिए लाइक इट इज नेवर अ सिनेरियो दैट इसका नंबर इंक्रीज होगा। हम ह्यूमन बींग है, तो हम सारे में क्या हो, कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, ठीक है? हमारे है क्या होते हैं क्रोमोसोम, ठीक है? नाउ यू सी डीएनए इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? लेकिन जब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग, इन ह्यूमन बीइंग देयर इज अ 46 क्रोमोसोम, ठीक है? टोटल 46 होते हैं। तो ऐसे अगर ये स्प्रेड होके बैठे हैं, मतलब अगर डिवीजन होता है तो कैसे डिवीजन होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी, इजंट इट? तो क्या करते हैं, ये पहले ही ऐसे बन के बैठ जाते हैं, ऐसे ऐसे करके ये 46 बना के बैठते हैं, ठीक है? तो अगर डिवीजन होना है, मतलब क्या होगा, मम्मी से 23 जाएगा, पापा से 23 जाएगा, ठीक है? मतलब पापा में क्या होंगे, 46 होंगे, मम्मी में भी 46 होंगे, लेकिन जब डिवीजन होगा तो 46 और 46 जाएगा। तो इसीलिए क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम कुछ नहीं है, वो डीएनए ही है, लेकिन कंडेंस फॉर्म में है, ठीक है? जब डीएनए कंडेंस फॉर्म में होते हैं, हम उसे बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है? क्रोमोसोम। एंड ये कंडेंस फॉर्म में क्यों जाते हैं? सेल डिवीजन के टाइम में। क्यों सेल डिवीजन के टाइम में? क्योंकि अगर ये थ्रेड लाइक होके ही डिवाइड हो जाएंगे, राइट, तो क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए पहले, डिवीजन से पहले क्या हो जाते हैं, ये कंडेंस हो जाते हैं, कंपाइल हो जाते हैं, और इंडिविजुअली ये लोग क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है? और मतलब मैंने आपको क्या बोला, 46 होते हैं, तो मम्मी से 46 तो नहीं जा सकता, बस 23 जाना चाहिए। पापा के पास भी 46 होते हैं, 46 तो नहीं जा सकता, बस 23 जाना चाहिए। इसीलिए टू मेक श्योर ओनली 23 goes, okay, the genetic material get condensed into chromosome, that is the DNA get condensed into the chromosome before cell division, so that equal number of genetic material or the chromosome contribute to the offspring, ठीक है? नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज जीन? अब आप बोलोगे मैम आपने हमें बोला डीएनए क्या है, आपने हमें बोला क्रोमोसोम, ठीक है, क्या है, तो मैम अभी आप बोल रहे हो जीन, तो ये जीन क्या है? ये तो बस एक नया वर्ड है, एकदम न्यू है, मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में। सो जीन क्या होते हैं? डीएनए ही है, लेकिन पर्टिकुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर समथिंग, ठीक है? जैसे द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इट हैज बीन रिटन, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ heredity, not DNA, sorry, you can write DNA also, but it is exactly, if we recall the definition, it will be heredity, ठीक है? The functional unit of heredity is gene. Every gene control one or several particular characteristics features in living organism. For example, ये एक लंबा सा थ्रेड है, डीएनए है, ठीक है? बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है, यहाँ से मैं अगर खींचूंगी तो सन तक पहुंचेगा, इतना ज्यादा डीएनए कंसंट्रेटेड होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? तो मैं बोलूंगी अगर ये पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आपका हेयर कलर को कोड करता है। मैंने आपको क्या बोला, हमारे जो नाक है, आंख है, मुंह है, हेयर्स है, सारे कुछ क्या कोड करते हैं? डीएनए कोड करते हैं, राइट? सो डीएनए का ईच पार्ट ईच इस चीज को कोड करेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा डीएनए सारा चीज को कोड करता है, बस ये सर्टेन पार्ट हेयर को कोड करेगा, यहाँ से इतना पार्ट आपके क्या आंखों को, आई को कोड करेगा, ठीक है? और फिर ले जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक आपके नोज के शेप को,
ठीक है, नोज के शेप को कोड करेगा, ऐसे करके होता है। तो जो ये पर्टिकुलर एरिया जो किसी चीज को कोड करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन प्ले कर रहे हैं, एक रोल प्ले कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं जीन। इसे हम जीन कह सकते हैं, इसको हम जीन कह सकते हैं, इसको हम जीन कह सकते हैं, लेकिन इसको बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं दे रहा है। मैंने नहीं बोला कि ये यहाँ से यहाँ तक कोई फंक्शन प्ले कर रहा है, ये जीन नहीं है, क्योंकि ये नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए है। ठीक है, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज जीन, जो कोई चीज को, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करता है। ठीक है, एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, व्हाट इज हेरिडिटरी। से बच्चों को अक्सर ये होता है कि डीएनए क्या है, जीन क्या है। आई होप दिस पार्ट इज वेरी क्लियर टू यू। एंड जो डीएनए जो कंडेंस फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो कुछ कुछ फंक्शन को कोड कर रहे हैं, जैसे यहाँ से यहाँ हेयर बोला मैंने, यहाँ से यहाँ आई बोला, यहाँ से यहाँ आपको नोज बोला, राइट। तो सारे ये जब कंडेंस होके ऐसे फॉर्म में बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं, ताकि डिवीजन में इजी हो। जब सेल डिवाइड होता है तब इक्वली वो दोनों सेल में चले जाए, ठीक है, तब क्या होगा, उसको हम बोलेंगे क्रोमोसोम। द कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज नोन एज क्रोमोसोम। ठीक है, तो अब मैं एग्जांपल दूंगी। ये एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर डीएनए है। अब ये दो में डिवाइड होगा तो क्या होगा, इसमें भी सेल होगा, सॉरी, इसमें भी डीएनए होगा, इसमें भी डीएनए होगा। लेकिन इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब डिवाइड होगा, क्या इजी होगा कि यहाँ भी इक्वल जाए, यहाँ भी इक्वल जाए? नहीं। इसीलिए डिवीजन से पहले ये क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। ठीक है, कंडेंस होते हैं, उसके बाद ही डिवाइड होते हैं, सो दैट इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड हो। ठीक है, सो दैट इक्वल नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल दोनों सेल में चले जाए। Now coming to the next one, what is hereditary? ठीक है, the process by which the feature of an organism are passed on from one generation to another is known as hereditary. ठीक है, that is nothing but the process by which the feature is transferred from one generation to another generation. जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिए, गॉट द थिंग, कि हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से आए हुए हैं, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स फिर हमारे हमारे बच्चे में जाएंगे, हमारे बच्चे के कैरेक्टरिस्टिक्स फिर उनके बच्चे में जाएंगे। ये प्रोसेस है जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पास हो रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी। द प्रोसेस इज डन बाय जीन। ऑब्वियसली मैंने बोला कि जीन एक फंक्शनल यूनिट है जो कोड करता है हेयर कलर। जैसे आप में से आपको देखिए, आपका जो हेयर है, ठीक है, आपका हेयर का जैसे टेक्सचर है, आपका पेरेंट्स से आया होगा। या तो आपके पास अगर स्ट्रेट हेयर है तो या तो आपके मम्मी के स्ट्रेट हेयर होंगे, या तो आपके पापा के स्ट्रेट टाइप के हेयर होंगे, या तो आपके दादा दादी के होंगे, जो आपके मम्मी और पापा में दिखाई नहीं दिए थे, सप्रेस हुए थे आपके मम्मी और पापा के जनरेशन में, लेकिन वो आप में दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके दादा दादी से कुछ से आया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। द प्रोसेस एंड देन, हाँ मैं क्या बोल रही थी, जीन, राइट। सो जीन क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है जो एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डीएनए, राइट, डीएनए इज पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट मीन्स व्हाट इज प्लेइंग द मेन रोल, जीन इज प्लेइंग द मेन रोल, क्योंकि जीन एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करता है। इसीलिए हमें कैसे पता चला कि डीएनए हेरिडिटरी में पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हमें जीन के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए डीएनए में। ठीक है, सी, द प्रोसेस इज डन बाय जीन which define the characteristics of the organism. The hereditary process कौन करते हैं, जीन करते हैं, क्योंकि जीन ही फंक्शन ले आते हैं। मतलब फंक्शन किसकी हेल्प से आ रहे हैं, जीन के हेल्प से। जीन कहाँ है, डीएनए में। ठीक है, ये बस वाइस एंड वर्सा है, कुछ नहीं। नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय or was given by Mendel, okay, and he is also known as Gregor John Mendel, and he's the father of genetics, and he was an Australian monk who understood the concept of hereditary in a pea plant. ठीक है, पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट क्यों लिए, क्योंकि वो फास्ट ग्रोइंग है, उनका बहुत सारा सारा वेराइटीज है, डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर है। ठीक है, दैट इज द रीजन, फ्यू रीजन व्हाई ही टूक द
planned for his experiment for hereditary. So there are three basic laws of hereditary. The first is the law of dominance, law of segregation, and law of independent assortment. Okay? Assortment. And we will be understanding each type of the law of inheritance in the next few slides. Okay? So now coming to first of all the law of dominance. All right. So the law of dominance says that a gene has two contrasting alleles and one always expresses itself in organism. If T is equal to tall and T is equal to short, then T and T is tall. यहाँ पे बोलने का क्या मतलब है कि लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल टॉल हो, तो आपके वो टॉलनेस को कौन से दो जीन के कारण हुआ है। तो मैंने जो आपको डीएनए बनाया था और मैंने जो जीन बनाया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जीन है उसका नाम मैंने दिया टी और टी। ठीक है, तो आपके जो डीएनए में ये टी और टी है, ठीक है, ये फर्स्ट टी आपके पापा से आए हुए हैं, ये सेकंड टी आपके मम्मा से आए हुए हैं। For example, this stretch in your DNA is helping to give you a good height. Then the thing is, the scenario is like ये वाले stretch आपके मम्मी से आए हुए हैं and the next वाले stretch आपके पापा से आए होंगे, क्योंकि डीएनए डबल हेलिक्स होते हैं ऐसे। तो फर्स्ट वाला स्ट्रेच पापा से है, नेक्स्ट वाला स्ट्रेच मम्मी से है। ठीक है, ऐसा होता है। तो फर्स्ट वाला स्ट्रेच टी है, सेकंड वाला स्ट्रेच भी कैपिटल टी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका हाइट क्या होगा, टॉल होगा। ठीक है, अगर टी इज कोडिंग फॉर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज कोडिंग फॉर शॉर्टनेस, ठीक है, शॉर्ट हाइट, देन अगर आपके पास मम्मी से भी टी आया है, पापा से भी कैपिटल टी आया है, मतलब आप 100% टॉल हो। लेकिन ऐसा है अगर कि आपके पास मम्मी से स्मॉल वाला टी आया है, क्योंकि आपके मम्मी के पेरेंट्स में से दोनों में से एक थोड़े शॉर्ट हाइटेड थे, ठीक है, तो आपको मम्मी से छोटा वाला टी मिला है और पापा से बड़ा वाला टी मिला है जीन में, तो आपको क्या हाइट होंगे, टी और टी आपका टॉल ही होगा। क्यों टॉल होगा, क्योंकि टी डोमिनेंट जीन है, दोनों का अगर सामना हुआ तो हमेशा कैपिटल ही जीतेगा, वो छोटा वाला टी नहीं दिखेगा, छुप जाएगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक्स को कोड करने के लिए दो पेयर ऑफ जीन चाहिए होता है, जिसे हम अलील कहते हैं। और दो पेयर ऑफ जीन में से एक मम्मी से आता है, दूसरा पापा से आता है। आपके अगर मम्मी से आपको डोमिनेंट जीन मिले हैं तो आपका आप में मम्मी का कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके मम्मी और पापा दोनों के डोमिनेंट जीन है तो कोई बात नहीं, दैट विल ओनली गेट रिफ्लेक्टेड। दोनों का बड़ा हाइट है और दोनों का डोमिनेंट ही वही जीन है, तो आपका हाइट पक्का बड़ा होगा। लेकिन आपके मम्मी और पापा दोनों का हाइट बड़ा है और आपके मम्मी के पास रिसेसिव जीन भी है स्मॉल टी वाले, तो क्या होगा कि आपका बड़ा हाइट ही होगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जनरेशन में किसी से शादी कर लोगे, ठीक है, जिसका टी टी है और जिससे शादी किया हुआ है उसका भी टी और टी है, तो आपका चांस होगा कि एक बच्चा का हाइट शॉर्ट हो, क्योंकि ये दो मिल जाएंगे। तो रिसेसिव एंड डोमिनेंट का मतलब क्या है कि जो जीन कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं और जिस जिस किसी भी कॉम्बिनेशन में खुद को ही एक्सप्रेस करता है, ऐसे कॉम्बिनेशन हुआ तो वो खुद को एक्सप्रेस करेगा 100%, एंड ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ तो भी वो खुद को ही एक्सप्रेस करेगा। और लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन होने से ये छोटा वाला एक्सप्रेस करेगा खुद को। ठीक है, तो ये छोटे वाले जो बस अपना कॉम्बिनेशन होने से खुद को एक्सप्रेस कर पाता है उसे रिसेसिव कहते हैं। और ऐसे कॉम्बिनेशन ऐसे वाले टी जो छोटे के साथ भी होने से खुद को ही एक्सप्रेस करता है उसे हम डोमिनेंट जीन कहेंगे। ठीक है, सी
Trait matlab characteristics are of two type. One is the dominant characteristics, another is the recessive characteristics. Matlab the trait that expresses themselves in any organism in any possible combination can be seen, can be said a dominant trait. ठीक है, a trait which do not express in the presence of dominant allele is known as recessive. ठीक है, डोमिनेंट अलील के प्रेजेंस में वो खुद को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाता, बस दोनों खुद जैसा होना चाहिए तभी एक्सप्रेस कर पाएगा, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव अलील. सो अगर आपके पास ये वाला जीन है, आपका हाइट अच्छा है, ठीक है, और आपके पास ये वाला जीन है, मतलब आपके पास एक डोमिनेंट जीन है, एक रिसेसिव जीन है, तो आपका हाइट बड़ा ही होगा क्योंकि एक्सप्रेस तो डोमिनेंट वाला ही होगा. लेकिन आपके नेक्स्ट जनरेशन में अगर आपके पार्टनर के पास भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन होंगे तो आपके एक बच्चे के हाइट छोटे हो सकते हैं, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन करेंगे तो बड़ा टी और बड़ा एंड छोटा. Okay, we will be doing this thing in the next slide. Okay, this will be very hotspot out here. So T always wins over small t, right? So TT equals to tall. Capital T is tall, obviously, and small t is short. T can only be expressed if combination is T and T. Okay. Now the law of segregation. See, I told you in every characteristics, for every characteristics there are two gene, right? And the gene, one is contributed from the father and another is contributed by the mother, so they are known as allele because they can be opposite to one another. For example, आपकी mummy के like eyes can be black and your father eyes can be brown, right? So they are having the opposite characteristics, so that so they are known as allele. ठीक है, what are allele? The gene having the contrasting characteristics are known as allele. All right, but they code for the same kind of feature, that is eye color. Okay. Now you see capital B and or B and B. Okay. See, capital B is for black and small b is for brown. So capital B and capital B and capital B and small b both code for black eye, and only the small b and small b will be coding for the brown eye, right? So if mother is having brown eye, that is small b, and father is having black eye, that is capital B and small b, so when there will be the combination to form a child, तब क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि सी मैं यहाँ पे क्या बोलना चाहती हूँ, देखो ये वाला, ये ब्राउन वाला देखो, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये ब्राउन वाला देखो, ये जो ब्राउन आई है ये वाले बच्चे में, उसको क्या है, उसके पास दोनों स्मॉल बी और स्मॉल बी है, लेकिन देखो एक स्मॉल बी का कलर पर्पल बनाया है मैंने और दूसरे स्मॉल बी का कलर मैंने बनाया है रेड. इसका मतलब अगर बच्ची के पास ब्राउन आई हो, फिर भी ऐसा नहीं है कि दोनों जो ब्राउन आई के लिए जीन है वो मदर से आए हैं. ऐसा हमेशा होता है कि एक मदर से आए हैं, एक फादर से आए हैं. नो मैटर वो मदर के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन द कॉम्बिनेशन विल ऑलवेज कम फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट. ऐसा नहीं है कि मम्मी का ब्राउन आई है तो सारा मेरे पास फीचर मम्मी से ही आया इसलिए मैं ब्राउन हो गई, ऐसा नहीं होता. मम्मी का एक रिसेसिव जीन, पापा का एक रिसेसिव जीन आया, इसीलिए मैं ब्राउन कलर की आंख हुआ, इसीलिए मेरा ब्राउन आई हुआ. ठीक है, दैट इज द थिंग. बोलने का मतलब यही है सेग्रीगेशन में. सी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट टू alleles coding for same trait, same kind of characteristics separate during the gamete formation. मतलब यहाँ पे क्या है, two allele B and B are two allele, they are coding for the same characteristics, right? And they will be separating, ये B separate होगा और ये B भी separate होगा. देखो ये वाले जो मैपिंग है इससे पता चल रहा है कि दोनों सेपरेट हो रहे हैं, राइट? दैट इज द थिंग, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों साथ में नहीं होंगे. ठीक है. So B for brown hair and capital B is for black hair. In this case, no matter what hair color the child has, okay, it is
solely, it is not solely contributed by one parent. The allele separate before making the combination. इसका मतलब जब भी the gamete formation के time में, ठीक है, what happens is the gene of the parent will be separating, the allele of the parent will be separating. that is, जो मम्मी के पास अगर बीबी है तो आपके पास भी अगर बीबी आया, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा मम्मी से आया है, पापा के पास ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए ये भी पापा के से ही आएगा, क्योंकि ये भी तो इसके साथ मिलेगा, ठीक है, पूरा मम्मी से नहीं आएगा, पूरा पापा से नहीं आएगा, दोनों हमेशा सेपरेट होंगे, यहाँ पे भी ये दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में एक ही कोड करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा सेपरेट रहते हैं, ठीक है, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। नाउ कमिंग टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. Law of independent assortment says that when triad can segregate independently of the different characteristics during gamete formation, यहाँ पे क्या है, आपको एक ही characteristics के बारे में नहीं सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कर्ली ब्राउन हेयर एंड ब्लैक एंड स्ट्रेट हेयर, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके मम्मी के है कर्ली ब्राउन हेयर एंड आपके पापा के है ब्लैक एंड स्ट्रेट हेयर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपके पास ब्लैक एंड स्ट्रेट हेयर आएंगे, या तो कर्ली और ब्राउन हेयर होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि मम्मी से आपको कलर मिलेगा, पापा से आपको द टेक्सचर, हेयर स्ट्रेट होंगे या कर्ल होंगे, वो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो साथ में रहते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, मम्मी का था कर्ली और ब्राउन हेयर, पापा का था स्ट्रेट एंड ब्लैक हेयर, बट बच्ची में क्या आया, कर्ली एंड ब्लैक हेयर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्ट्रेट एंड ब्लैक मिले क्योंकि मम्मी का जीन रिसेसिव हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कर्ली और ब्राउन दोनों एक साथ मिले क्योंकि पापा के जीन रिसेसिव हो, लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि वो दोनों सेपरेट होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों मम्मी से ही फीचर आए हैं, एक फीचर पापा से मिलेंगे, एक फीचर मम्मी से मिलेंगे, दोनों एक ही पेरेंट से कभी नहीं आते, ठीक है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment से दैट द trait can segregate independently of different characters during gamete formation. The allele of two different gene gets sorted into the gamete independently of one another, that is they are not dependent. कर्ली और ब्राउन डिपेंडेंट नहीं है, कर्ली होने से ब्राउन ही होना चाहिए ऐसा कभी नहीं है, ठीक है। वो दोनों हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं, कर्ली हो या ब्राउन हो कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। The allele received from one gene does not influence the allele received from the another gene. मतलब आपके पास कुछ भी अलील मिले, कर्ली मिले या ब्राउन मिले, ऐसा नहीं है कि आपको कर्ली मिला है मतलब ब्राउन ही होगा, आपको कर्ली मिला है तो ब्लैक वाला भी पापा से मिल सकता है, ठीक है। तो the allele assort independently during gamete formation. The same thing has been repeated. I have uh, written this multiple times so that you can write it in any way as you remember. जैसे आपको समझ में आए आप वैसा लिख दो, ठीक है। Here the one characteristics, देखो one characteristics is not dependent on other. Each character is independent and separate during gamete formation. ठीक है, each character is independent and separate during gamete formation, they are not dependent, ठीक है। So this was only for today, and in the next class we will be taking each of the topic in small chunks and then we will be studying, okay. Moreover, we have monohybrid and dihybrid cross also, that I'll be taking in the individual session, since this session has been so long and so clumsy, I guess. So I'll try to make another video where I'll be explaining you each of this thing in a single video only, so that you will be able to understand this in quite more detail, okay. Thank you so much for today. I hope you had a good time and thank you so much.